Good evening, everybody. We will start now. I'll share my screen. Hopefully, I'm audible. The screen is visible. Now you can tell me in case there is any problem. So it's there, hopefully. Let's get into the discussion. Okay. This is today's lecture number 23. Today, what we will be covering is this is acknowledgement that everything is taken from the internet source. And now we get into one very important constellation, that is Aries, Mesh, and then we will be talking about deep sky object in Aries constellation. Then general astro topic we will be dealing is a 10th Maharashtra State Board astronomy syllabus. Okay, so now let's get into the Aries part of it. Aries means Mesh Rashi. It is the constellation which appears on ecliptic. This is the first constellation and has got too much importance in many of the literature of many civilizations. Okay, so particular thing is well known to you all. These are all constellations we have covered. I will not now list down. What I am trying to show you here is Aries constellation. Triangulum we covered last time. Then we covered Perseus, Yayati. Now this is Aries. As you can understand, I am going to fill up every time so that you can get the constellation taught here, which will be available in your sky. Okay. As such, now though I'm lagging little bit because Aries and all must be almost around Sun, so it will be a bit difficult for you to see. But hopefully get into this part. Now this is the Aries constellation. Here you can see. This is some backdated map, so you can see moon around, but presently it will not be there. Now we are just around some other period. It is the map of 17th February or so, and today we stand in by end of March. So it's almost 1.5 months late. So this constellation, what I am will be covering today. Now let's get into this particular part. I hope it's readable. As such, I'm going to read it for you. Aries constellation is located in northern hemisphere. Its name means the ram in Latin. The symbol for the constellation is something with a two horns. It represents ram's horns, and the constellation Aries is usually associated with the story of golden fleece in a Greek mythology. अभी जैसे हम लोग हमेशा ही बात करते हैं mythology या every civilization, every community, everybody who has had some written content of what they observed in on a celestial sphere called sky. तो जहां वहां उनको जो भी दिखा वो उन्होंने लिस्ट आउट किया और उसको अपनी कवि कल्पनाओं के साथ जोड़ दिया। तो ये जोड़ने की जो आदत है उससे बहुत सारी कहानियां हुई और वही बाद में आगे जाके कुछ गलत फहमियों का तो कुछ नॉलेज का हिस्सा बनी। नाउ व्हाट यू आर सीइंग हियर इज द रियल एरिस कॉन्स्टेलेशन। इसमें आपको मैं थोड़ा बड़ा करके इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं इसमें आपको कुछ तारे दिखा रहा हूँ जो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। लेट्स मार्क देम। I'm talking about this particular Messar team. Then this is something called Sheraton. Then this is called Hamal. And this is called 41 Eritis. ये इसलिए क्योंकि ये प्रोमिनेंटली दिखते हैं। 41 एरिटीज थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जैसे आप बाकी तीनों की बात करें तो वो अच्छे। तो इन तारों के बारे में हम अभी बात करेंगे, बट बिफोर दैट विल गेट इनटू द अदर पिक्चर्स ऑफ एरिस कॉन्स्टेलेशन। Now you can see here what is exactly ram with its horn means. This is that particular ram. ये है वो मेंढा बोल सकते हैं, हिड़का बोल सकते हैं मराठी में। तो ये वो है जो हम वहाँ इमेजिन कर रहे हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी माइथोलॉजी की स्टोरी कवर करेंगे ही। Now, as you are seeing this Aries constellation here, I'll tell you certain things about this Aries constellation. Aries was first captured by the Greek astronomer Ptolemy. You must have heard this name Ptolemy at least more than 50 times in last 23 lectures. It was
in his Almagest, the second century literature or sky map or sky book, Aries is the 39th largest constellation in the sky, occupying 441 square degrees. It lies in a first quadrant of northern hemisphere NQ1 and can be seen at a latitude between plus 90 degree to minus 60 degree. Neighboring constellations, as you can see even in this picture also, are Pisces. Then in downside you have Cetus. Then you have Taurus. Upside you have Perseus. Little up you have Triangulum. So these are the constellations which are around the Aries constellation. The best view of Aries is basically December nights around 9 p.m. Though we are today in March, it is just closing the sun, so probably visibility may not be very good. The right ascension is 3 hours and declination is 20 degrees. Now you need to learn these particular terminologies on your own so that whenever I utter or say these particular things, you should be able to imagine certain things. Aries belongs to the zodiac family of constellation along with the other zodiac family. Like after Aries, you have Taurus, then Gemini, then Cancer, then Leo, then Virgo, then Libra, then Scorpio, then Sagittarius, it is said, Capricornus, and then you have Aquarius and Pisces. So last time we covered before Perseus, Triangulum, and before Triangulum we covered Pisces. That is Mean Rashi. Mean Rashi is the last Rashi or sun sign on the path of ecliptic as per our convention, and we consider Aries, Mesh as a starting point. तो हम बात करेंगे कि अभी जैसे गुड़ी पाड़वा आ रहा है, तो ये भी एसोसिएटेड है किसी नक्षत्र से, और ये जो नक्षत्र है वो क्या है ये भी हमको अभी समझ में आ जाएगा जब हम इसके थ्रू जाएंगे. ज्यादा से ज्यादा यहाँ अगर मैं भूल भी जाऊँ एक्सप्लेन करना, देन आल्सो वी विल बी कवरिंग दिस व्हेन वी विल हैव सम फ्यू स्काई और स्टार गेजिंग सेशन. तो हमने अभी बात की कि ये जो है ये भाई जोडियक फैमिली का एक कॉन्स्टिलेशन है जो इक्लिप्टिक पे यानी आता है. तो कॉन्स्टिलेशन हैज 5 मेन स्टार्स जिनको प्लैनेट्स हैं, and it has no messier of them. The brightest star in Aries is Hamal, that is Alpha Arietis, also called Ashwini. Okay, नक्षत्र. Okay, तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका ये नक्षत्र जो है इसमें से एरिस यानी मेष राशि में अश्विनी मतलब हमाल जो इसका योग तारा है, और फिर 41 एरिटिस इज अ भरणी. तो ये 41 एरिटिस मतलब अभी मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, पूछ वाला तारा यहाँ वाला, ये स्पेसिफिकली, ये सॉरी, हाँ ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ. तो इसमें हम जाएंगे धीरे धीरे, आपको जरूरत नहीं है. तो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन से देर आर सेवरल वेल नोन मेटियोर शॉवर्स कनेक्टेड टू दिस कॉन्स्टिलेशन. मे एरिटिड्स, ऑटोमनल एरिटिड्स, डेल्टा एरिटिड्स, एप्सिलॉन, डे टाइम एरिटिड्स, एरिस ट्रैंगुलिड्स, मतलब एरिस और ट्रैंगुलम जो है उनके बीच का भी एक मीटियोर शॉवर है. ऑफ कोर्स इनकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने काफी बार जेमिनिड, क्वाड्रेंटिडीज, ओरियनिड्स, लियोनिड्स सब देखे हैं, बट मैं एरिस से रिलेटेड चीज आज ही जब आपके लिए लिटरेचर पढ़ रहा था तो मुझे मालूम हुआ. The star name approved by the International Astronomical Union are Bharni, Botane, Hamal, Liliboria, Mesarthim and Sheraton. इसमें से Mesarthim, Sheraton, Hamal and 41 Eris that is Bharni, इनको हमने देखा. अभी हम चलते आगे की डायग्राम ताकि आपको पता. ये है अभी आपको जितने भी मैंने नाम बताए वो सब जब मैं प्रोमिनेंट तारों की बात करूंगा तो ये आपको सब गामा, बीटा, अल्फा और 41 एरिटीज मतलब ये लास्ट वाला जिसको मैं अभी से ही सर्कल बना के रखता हूँ ये, और ये डेल्टा है यहाँ पे, ये भी थोड़ा प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो इनकी बात करेंगे. बट उसके पहले जान लेते हैं जो स्टोरी यानी पौराणिक कथा इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन से एसोसिएटेड है. कौन सी स्टोरी एसोसिएटेड है कि Babylonians identified Aries as an agrarian worker. The last of stop on the ecliptic. अब ये लास्ट स्टॉप है कि फर्स्ट स्टॉप है इक्लिप्टिक का, उसमें उस बहस में जाएंगे नहीं. द नेम ऑफ द कॉन्स्टिलेशन चेंज टू रैम, बट बेबीलोन ने ये चेंज क्यों किया इसके बारे में कोई सर्टन या श्योर शॉर्ट इंफॉर्मेशन नहीं.
In the 7th century BC, Neo-Babylonians did a revision of Babylon zodiac that placed Alpha Aries मतलब हमाल मतलब अश्विनी very close to the vernal equinox. अभी ये चीज जो है छोटे बच्चों को थोड़ी तकलीफ दे सकती है, बट बड़े लोग या जो एवरेज इंटेलिजेंस रखते हैं, हम बार बार वर्नल इक्विनॉक्स की बात करते हैं जहाँ दिन और रात इक्वल है। और यही चीज अभी हाल ही में 20 मार्च को हमने 15:07 को मतलब दोपहर को महसूस की। उसका चित्र मैंने पिछले लेक्चर में 24 तारीख के दिखाया भी, आपको सवाल भी पूछा, जिसका जवाब आप लोगों ने नहीं दिया। अभी यहाँ बात हो रही है कि ये जो वर्नल इक्विनॉक्स है ये अल्फा एरिटिस यानी अश्विनी के आसपास 7th सेंचुरी बीसी मतलब ईसा पूर्व मतलब आज से तकरीबन 70 साल पहले था। ओके, अगर इस तरीके की सिचुएशन थी, विच इज हाउ एरीज केम टू सो प्रोमिनेंट अमंग द ज़ोडिएक साइंस इन एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी इतना पुराना नहीं है, मतलब एस्ट्रोनॉमी को बोलते हैं खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी मतलब फल ज्योतिष यानी ज्योतिष, अभी उसको शास्त्र बोलने की जरूरत नहीं। शास्त्र मतलब ऐसी कोई भी ज्ञान की बात जो विज्ञान के हर कसौटी पे प्रूफ पे निर्भर है और उसको प्रूव किया जा सकता है विद कंस्ट्रेंट इन सिस्टम। तो फल ज्योतिष जो है उसको उस तरीके से नहीं प्रूव किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर और साइंटिफिक थिंकिंग रखने वाले लोग बोलते हैं। इस पे एक सेपरेट लेक्चर हो सकता है, तो इस पे अभी इतना अंदर नहीं जाएंगे, बताएंगे इतना ही कि एरिस कॉन्स्टिलेशन को एस्ट्रोलॉजी में इतना महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो इक्वल डे एंड नाइट, जहां से नॉर्मली सिविलाइजेशन चाहते थे कि शुरुआत हो किस चीज की, शुरुआत हो नए ईयर की कैलकुलेशन की। क्यों? क्योंकि जैसे ही इक्वल दिन और रात हो गया और उसके बाद दिन बड़ा होने लगेगा, तो ऑब्वियसली इंसानी सभ्यता जो नॉर्मली पोलर रीजन में या वही उसके आसपास रहते हैं, जिनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की एक्यूपेंसी थोड़ी ज्यादा थी, तो उनको दिन जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे सन का एनर्जी ज्यादा मिलेगा, तो जिंदा रहने के लिए जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ईयर का स्टार्टिंग या स्प्रिंग को इतना सेलिब्रेट किया जाता है, स्प्रिंग का आना। एनीवेज, अभी स्टोरी पे चलते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरी पे। नहीं, उसके पहले हम इक्विनॉक्स की बात कर लेते हैं। इन दोस टाइम्स मतलब 7th century BC, एरिस कंटेंड द इक्विनॉक्स, द पॉइंट एट विच सन क्रॉसेस द सेलेस्टियल इक्वेटर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ बिकॉज ऑफ द प्रेसेशन। हमने प्रेसेशन मतलब परांचन गति, स्लो वॉबल ऑफ द अर्थ एक्सिस। Vernal equinox is now no longer in Aries but in a Pisces. In 130 BC, however, it was located just south of the Gamma Eridis. आप देख रहे हैं मूवमेंट कैसा हो रहा है। 7th century BC मतलब 700 BC जो है वो उस पीरियड में वो तकरीबन आपके हमाल के आसपास था। बाद में 130 BC के आसपास इट इज मतलब 2nd century ऑफ BC में इट हैज लोकेटेड जस्ट नियर टू द, यहाँ आपको चित्र में मेजर टीम दिख रहा है मेरे ख्याल से, और ऐसे करते करते वो आगे शिफ्ट होके अभी वो पाइसिस तक पहुंच गया है। इन ग्रीक माइथोलॉजी, एरिस इज आइडेंटिफाइड विद अ गोल्डन आइडेंटिफाइड एज अ गोल्डन रैम that rescued Phrixus and took him to the Colchis, where he sacrificed the ram to the god. अभी ये तो मुझे अजीब गरीब दास्ता समझ में नहीं आती। जिस रैम ने, रैम मतलब राम नहीं है यहाँ पे, वो मेंढी जो भी है एड़का, ओके, उसने बचाया, उसी को लेके गए भगवान के बाहर, उसको उसकी आहुति दे दी, उसका बलि दे दिया। The ram skin that he placed in the temple was the golden fleece, which later appeared in the story of Jason and Argonauts. तो इस तरीके की कुछ अनलिंक्ड उटपटांग थोड़ी इथिकल न लगने वाली स्टोरीज हर जगह घूमती है, हम उसमें ज्यादा जाएंगे नहीं। हम स्टोरी सिर्फ समझ लेते हैं। Phrixus was the son of Boeotian king. He had a twin sister, Hele. The children had stepmother Ino, who hated them and wanted to get rid of them. ऑब्वियसली कुछ प्लान बनाना पड़ेगा हिंदी पिक्चर जैसा, उनसे अगर छुटकारा पाना है तो। So she came up with a plan to put the land of brink of famine by making sure the wheat crop fed. मतलब ऐसी एक दुष्काल, दुष्काल मतलब क्या बोलेंगे उसको, अभी मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाला नहीं, ओके। तो मतलब ऐसी एक फेमिन कंडीशन उन्होंने कर दी, दुष्कालग्रस्त,
होने के लिए कि जिसमें उन्होंने वीट मतलब गेहूं की खेती जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। व्हेन अ मैन वाज सेंट टू कंसल्ट द ओरेकल एट डेल्फी, इनो मतलब वही स्टेप मदर ने ब्राइब कर दिया, उसको रिश्वत खिला दी और उससे झूठ बुलवाया और बताया कि भाई ये सारी चीज जो है ये सारी ठीक हो सकती है अगर राजा उसके बच्चों को सेक्रीफाइस यानी बलि दे दे। ओके, इससे जो आम जनता है, प्रजा है, इसको भूखमरी से बचने में आसानी होगी, क्योंकि खेती बाड़ी ठीक हो जाएगी, जो गेहूं है वो उगेगा, तो होगा ये आगे जाने वाली आगे आने वाली प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। तो भाई ये जो फ्रिक्सस और हेले वेर अबाउट टू डाई व्हेन द विंग्ड रैम, इस तरीके से उनका सेक्रीफाइस देने ही वाला था राजा, तब एक पंख वाला रैम एड का आ गया, इसकी इसकी जो ऊल यानी उसकी जो फर थी वो गोल्डन थी, उसने उनको बचा लिया। द रैम वॉज सेंड बाय देयर रियल मदर, कौन थी रियल मदर? एक निम्फ नेफेले। इट टुक बोथ चिल्ड्रेन एंड फ्लू ईस्ट टू द कोचीज। only Phrixus survived the journey. Hele fell off the ram and drawn into the Dardanelles. The strait was later renamed to the Hellespont or Sea of Hele in her memory. Abhi, Phrixus was welcomed by the king Atys of Colchis, to whom he presented the golden fleece, and in return the king gave Phrixus his daughter Calliopea's hand. अभी ये सारी चीजें आपको स्टोरी के तौर पे मैं एकदम डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि एटलीस्ट इसका 10-20% भी आपको याद रहे, और आप जब टेरेस में सोने जाओ एग्जाम के बाद, तो आसमान में जब एरिस कॉन्स्टिलेशन दिखे तो आप एटलीस्ट 10-20-30-50% तक भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो बढ़िया रहेगा। तो अभी हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन के योग तारा की, मतलब प्रोमिनेंट स्टार की, जिसका अल्फा एरिटिस है यहाँ दिखने वाला ये हमाल यानी अश्विनी, is the brightest star in the constellation Aries and the 48th brightest star in the night sky. It is K-type orange giant, about twice as massive as Sun, with apparent magnitude varying around 2, and the star is a 66 light year distance from us. Between 2000 and 100 BC, Hamal was located at vernal equinox. ये मैं बता चुका हूँ. The point that marks the beginning of spring. The name Hamal means lamb and derived from the Arabic phrase Ras al Hamal, Ras al Hamal, meaning head of the ram. और इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने पहली स्लाइड जो दिखाई जिसमें मैंने इस कॉन्स्टिलेशन का जो सिंबल दिखाया वो इसी तरीके से रैम के हॉर्न को डेसिग्नेट करता हुआ दिखा। अभी चलेंगे हम बीटा में, और बीटा है इसका शेरेटन। बीटा किधर है? यहाँ पे ये है बीटा। तो बीटा कॉन्स्टिलेशन, बीटा जो एरिटीज है शेरेटन इज अ व्हाइट मेन सीक्वेंस स्टार, स्पेक्ट्रोस्कोपिक बाइनरी है, तकरीबन 59.6 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। इसको एक कंपेनियन स्टार भी है जी स्टार, जी क्लास का। इसका विजुअल मैग्नीट्यूड 2.64 है। आप देख रहे होंगे कि मैं 2 के लगभग आसपास के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मतलब ये दोनों तारे अच्छे से रात को विजिबल है। द नेम कम्स अगेन फ्रॉम द अरेबिक फ्रेज अस सरतान, which means two signs, that refers to the vernal equinox which the star marked together with the gamma Eris few thousand years ago. अभी ये सिर्फ आपके कान के और दिमाग के आसपास से जाने दो जानकारी, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियोस इंटरनेट पे रहेंगे, आप जब चाहिए तभी उसको सुन सकते हैं। गैमा एरिटिस की बात करेंगे अभी, जो उसके नीचे है, पहले इसको मैं अंडू कर देता हूँ, और ये है गैमा, सॉरी ये है गैमा वाला पार्ट, मतलब मेजॉरिटी। It is a triple star system. Star also at times has been referred as the first star in Aries because at point it was the nearest visible star to the point of vernal equinox. Includes binary star system composed of two white A-type main sequence, an apparent magnitude of 4.75 and 4.83, approximately 7.7 arc second पे। थर्ड कंपोनेंट भी है, वो तकरीबन 221 आर्क सेकेंड अवे है। सिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली 160 लाइट ईयर्स की दूरी पे है, और ये जो चीज है इसका ब्राइटनेस जो है 0.04 मैग्नीट्यूड विद पीरियड ऑफ 2.61 डेज। अभी इसमें एक मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेल्टा की भी बात की थी, जो यही है, इसकी भी जानकारी है क्योंकि इसको नाम दिया गया है बोटेइन। ओके, ये डेल्टा एरिडिस है। देखो एक ऑरेंज के टाइप स्टार है,
168 लाइट ईयर्स दूर है अपने से और तकरीबन 4.35 की मैग्नीट्यूड रखता है, मतलब विजिबिलिटी है। डायमीटर 13 टाइम्स ज्यादा है अपने सूरज से। इसका मतलब होता है अरेबिक में बुटेन का मतलब होता है बेली। किसकी बेली, आप समझ ही सकते हैं। ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले रैम देखा, उसकी बेली के अंदर ये तार सिचुएटेड है। आगे का तारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा था। दिस इज दैट पर्टिकुलर स्टार। व्हाट इज दैट स्टार, ये आपको पहले तो एरीज देख लो आप अच्छे से। अभी मैं इसको जो गोला घुमाने वाला हूँ, स्पेसिफिकली टच किया, देखिए लाइन से मैंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार इसलिए है क्योंकि ये 41 एरिटीज यानी भरणी नक्षत्र का तारा है। It is called C Aries and has the traditional name Bharni. The star was named after the second lunar mansion division of the sky in Hindu astrology, भी astronomy, क्योंकि नक्षत्र ये हिंदू सभ्यता ने दिया हुआ वो फंडामेंटल है जो जितना एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ लगता है उससे कई गुना ज्यादा एस्ट्रोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इट gives us calculation system by which the least count of measurement of timekeeping has been reduced compared to the sun sign. अभी मैं बहुत कुछ बोला, अभी उसको मैं फिर से दोहराता हूँ ताकि आपको समझे। कोई भी सिस्टम का एक लिस्ट काउंट होता है, ये लिस्ट काउंट बहुत जरूरी चीज है। छोटी चीज जितनी आप मेजर कर सकते हो या छोटे से जितना मेजर कर सकते हो, तो बड़ों में बड़े मेजरमेंट में एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। हिंदू सभ्यता के हिसाब से 27 नक्षत्रास आर डिवाइडिंग द इक्लिप्टिक, जहाँ पे सूरज और चंद्रमा और बाकी प्लैनेट्स यानी वॉन्डरर घूमते हैं। वही बाकी सारे सिस्टम में सिर्फ 12 पार्टीशन है और उनको हम सनसाइन बोलते हैं। तो 27 बड़ा कि 12 बड़ा, ऑब्वियसली 27 बड़ा। और इस 27 पार्टीशन से हिंदू सभ्यता के जो सटीक हिसाब थे रिलीजियस सेलिब्रेशन के, बारिश के, वो काफी अच्छे थे। ये मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। इसमें कोई गर्व या फक्र करने वाली बात नहीं है। ये समझना जरूरी है कि हमारे पूर्वज जो थे वो ज्ञानी थे और मेहनती भी थे, तो हमको ज्ञानी भी बनना है, सभ्य भी बनना है, मेहनती भी बनना है। और देश के लिए घर में बैठ के कुछ नहीं हो सकता, तो देश के लिए कुछ करना है तो आपको बाहर जाके लोगों से घुलना मिलना पड़ेगा आफ्टर दी कोरोना क्राइसिस एंड्स। तो उसमें बाद में जाएंगे। यहाँ एक एप्सिलॉन भी दिखाया, बट उसमें मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि हमको कुछ डीप स्काई ऑब्जेक्ट कवर करने हैं और उसके लिए मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से बाहर आता हूँ। लेट्स गेट इनटू द डीप स्काई। अब आप ये बोल सकते हो मुझे बिंदास कि शायद मैं हमेशा यही स्लाइड दिखाता हूँ और उसको कोई नया नाम देता हूँ, एनजीसी फलाना फलाना, और बोलता हूँ ये एक गैलेक्सी है जो इस तरीके की है और वो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन में है। अभी आपको समझना होगा कि जब भी हम गैलेक्सी के फोटो की बात करते हैं, ये बहुत दूर से लिया हुआ फोटो है। सम आर द आर्टिस्टिक इम्प्रेशन, तो लाजमी है कि वो एक जैसे ही दिखेंगे। यहाँ आपको जो दिखाया हुआ चित्र है वो 772 एनजीसी है, ARP 78। इट इज अनबार्ड स्पाइरल गैलेक्सी इन एरीज, located 130 light years from Earth and has apparent magnitude of 11.3. The galaxy lies southeast of Beta Eris, and two supernovae were discovered in this galaxy: supernovae 2003 HL and supernovae 2993 IQ. NGC 772 has satellite galaxy. NGC 770 is an elliptical galaxy with apparent magnitude of 14.2. ये जब मैं मैग्नीट्यूड 14, 11, 10 बोलता हूँ, अब ये पकड़ के चलिए कि हमको इनका जो अनुभव, आनंद, ज्ञान प्राप्त करना है वो इंटरनेट से ही होगा। हमारे अपने टेलीस्कोप से इसको समझना या उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज एनजीसी। यू कैन, दिस इज समथिंग dwarf irregular galaxy with apparent magnitude of 12.3, classified as a Magellanic type irregular galaxy, क्योंकि मैंजेलिनिक क्लाउड जो है अपने उस तरीके की ये दिखती है, आभास करती है। गैलेक्सी कोर इज लार्जर देन एवरेज एंड देयर आर रीजन्स ऑफ कॉन्ट्रा rotating gas inside it, believed to be the result of interaction with another galaxy. NGC 1156 lies northwest of Delta Eris। अभी यहाँ आपने डेल्टा एरिटिस देखा था, ये वाला, उसके लगभग कहीं आसपास में ही ये पर्टिकुलर गैलेक्सी है। ये आपको मैं सिर्फ इसलिए वापस लेके आया ताकि आपको क्लैरिटी आए कि हमको कैसी चीजें दिखती है। यहाँ भी अगर आप देखना चाहो तो ये नीचे की जो कॉन्स्टिलेशन है इसको हम मार्क करें तो ये सीटस है। अभी मैं आगे चलूं तो आपको दिखेगा कि ये पाइसिस है।
ओके, मैं थोड़ा ऊपर चलूँ तो आपको दिखेगा कि ये ट्रायंगुलम है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आपको दिखेगी, ये पर्सियस है। और ये पर्सियस का जो हिबिस्कस या शू फ्लावर का डंडी दिख रहा था, वो ये है आपका कृत्तिका यानी प्लीट्स। और इस तरफ जो है आपकी टॉरस कॉन्स्टिलेशन। तो ये हमेशा आप जब कोई भी स्काई मैप देख रहे हो तो हमेशा उसके इर्द गिर्द क्या है ये आपको ध्यान रखना है। इट विल हेल्प यू मेमोराइज द थिंग्स एंड मेक यू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर देम फॉर एवर। हमने ये पढ़े, अभी इंडिस 972 की तरफ चलते हैं। इज अ स्पाइरल गैलेक्सी लोकेटेड इन द नॉर्दर्न कॉर्नर ऑफ द एरीज कॉन्स्टिलेशन। अपरेंट मैग्नीट्यूड समवेयर अराउंड 12.1 है। आज का कॉन्स्टिलेशन का किस्सा है वाला है साइड ए। ओके, कुछ फ्री में मिलेगा तो लोगों को मजा नहीं आता, और कुछ लोगों को सिर्फ फ्री में ही मजा आता। हर तरीके के लोग हैं देश में। तो अभी कोई तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये पेज अपना कवर हो चुका था मेरे ख्याल से। आपके लिए मैं समराइज करूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये चीज में सिर्फ इतना बताने की कोशिश की गई है। मेनी पीपल डाउट दैट व्हाई सच अ कॉस्टली स्पेस मिशन आर टेकन अप by the people or the government of some countries which are poor. The obvious answer is somehow, somewhere in long run, such space mission help humanity in turn to that particular nation. जैसे आज हिंदुस्तान की बात करें, जिनके पास लिटरली खाने के लिए गेहूं, अनाज, बहुत सारी रिसोर्सेज की कमी थी 1962 में, जब हम स्पेस रिसर्च में एंट्री किए। फ्रॉम न्यूक्लियर टू स्पेस रिसर्च, क्रेडिट गोज टू धवन, विक्रम साराभाई, सो मेनी पीपल। तो ये बेसिकली आउटफिट था जो सेपरेट हुआ या उसके साथ चला, जो न्यूक्लियर था। एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, एईई, ये 1945-43 के आसपास बना। आगे जाके 1962 के आसपास स्पेस विंग खोला गया, और उसकी जो कमान है वो दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने संभाली। तो ये जो हुआ उसका आज ये नतीजा है कि हिंदुस्तान स्पेस और न्यूक्लियर प्रणाली में इस हद तक आगे है कि दुनिया के गिने चुने 4-5 देशों में हम नंबर लगाते हैं। और इससे फायदा क्या होता है? तो यहाँ से communicate करना, मिलिट्री क्राइसिस है, कहीं कहीं फ्लड हो गया है, तो ये सारी चीजें, या फिर हवामान का अंदाजा बताने के लिए जिस प्रणाली, जिस साइंस और टेक्नोलॉजी के औजारों का इस्तेमाल होता है, वो जुड़े हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के इमेजिंग से। और ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती है, तो ये यहाँ एक चित्र के फॉर्म में आपको इस फिगर में दिखाया है। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? नथिंग। आर्टिफिशियल सैटेलाइट नथिंग बट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी अदर प्लेनेट, एंड द मून इज द, सॉरी, नेचुरल की बात कर रहे थे, मून अपना नेचुरल सैटेलाइट है। फोबोस एंड डिमियोस मार्स के हैं। ऐसे कई टाइप के, जैसे गनीमेड, आयो, कैलिस्टो, जुपिटर के हैं। टाइटन नाम का नेचुरल सैटेलाइट सैटर्न का है। जैसे चौरान प्लूटो का है। इस तरीके से नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। अगर इंसान आर्टिफिशियली बना के कोई चीज किसी प्लेनेट के अराउंड घूमने के लिए छोड़ दे तो उसको हम बोलेंगे पड़ता है। तो उसके बारे में यहाँ की जानकारी दी है, जो हमने शायद पढ़ी थी। आपने चैट बॉक्स में मुझे बताया नहीं कि मैं कहाँ तक गया हूँ। दिस पेज इज कंप्लीटेड, गुरुवेश ने बता दिया। तो गुरुवेश फटाफट लिखो, ये भी पेज कंप्लीट हुआ है क्या? जल्दी जल्दी लिखो लिखो, ये पेज हुआ है क्या? नो सर, गुड। अविरत यस बोल रहा है। आपको श्लोक भी नो बोल रहा है। अविरत जी सॉरी, मैं कर लेता हूँ। ओके सर, इट इज कंप्लीटेड। दो 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 हो गया, तीन हो गया। अभी आपका मैं वोटिंग
करते रहूंगा, आपका वोटिंग देखते रहूंगा तो तकलीफ नहीं होगा। चलो लेट्स गेट इनटू दिस। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक है, यूएसएसआर, यूनाइटेड मतलब सोवियत रशिया ने, सोवियत यूनियन ने 1957 में छोड़ा। फिगर 10.2 में उसकी फिगर दिखाई गई। आप देख भी सकते हो कि मिनिमम फ्रिक्शन हो तो ऊर्जा कम लगती है, फ्यूल कम लगेगा तो उसके हिसाब से उसको छोड़ना आसान होगा। इस फंडामेंटल के बेसिस पे इसका यह आकार बना। ओके, आज की डेट पे जब 1957 में पहला छोड़ा गया, आज की डेट पे हजारों कृत्रिम मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी को चक्कर लगा रहे हैं। दे वर्क ऑन सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी पे काम करने के लिए जो फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगते हैं वो उनके बॉडी के अक्रॉस लगाए रहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के, जैसे कि उनके कोई पंख हो। इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल्ड इन द सैटेलाइट रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम एंड टू द अर्थ। पृथ्वी की तरफ और पृथ्वी से उसकी तरफ सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाँ, है वो करते हैं। The satellite have various other types of instruments depending on their functions. बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण सैटेलाइट के ऊपर होते हैं। उनके फंक्शंस जो है वो उनका कार्य प्रणाली यहाँ दिखाया गया है कि भाई मोबाइल या टीवी कैसे काम करता है सैटेलाइट की मदद से। तो पिछली बार को एक होशियार बंदे ने सवाल पूछ लिया कि सब तो टॉवर से सिग्नल ले रहे हैं, तो ये जो ब्लू कलर वाला बंदा है वो सैटेलाइट से क्यों ले रहा है? तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि देर इज समथिंग कॉल्ड सेल्युलर फोन टेक्नोलॉजी, देर इज समथिंग कॉल्ड सैटेलाइट फोन टेक्नोलॉजी। तो सैटेलाइट से भी आप ले सकते हो, बट वो महंगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ऑब्वियसली जो सुविधा आपको टॉवर से मिल सकती है वो वहां नहीं मिल सकती, बट इसका बहुत इस्तेमाल होता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे टॉवर्स नहीं होते। जैसे समुद्र के अंदर आपकी बात कर सकते हो, कहीं आप ऐसे रिमोट जगह पे जहाँ पे आपके पास कोई टॉवर खड़े करने की क्षमता नहीं है, वो सारी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। तो हमने 10.1 ये टेक्नोलॉजी से इंडिया का स्पेस रिसर्च में जो कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर आप पीपीटी बनाएंगे। बहुत ज्यादा आलसी है अनु, आप सोच रहे हो कि कभी कभी इंटरमीडिएटली एस्ट्रोनॉमी का क्लास अटेंड करके आप सब लोग एस्ट्रोनॉट बन जाओगे, तो ये गलत एक्सपेक्टेशन है जिंदगी से भी और खुद से भी। तो आपको थोड़ा मेहनती और सिंसियर बनना पड़ेगा। तो अभी हम जानते हैं कि किस तरीके से फंक्शन से सैटेलाइट का नाम या कैटेगरी बदल। इनसेट एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। जीसैट जियो सिंक्रोनस, जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर दो रह गए, आईआरएनएसएस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, आईआरएस इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। अभी आप बोलोगे ये क्यों मैं पढ़वा रहा हूँ डबल, मुझे मालूम तय हो गया है, फिर भी क्योंकि इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है, और स्पेशली 10th के बच्चों को, अगर जो दो तीन है उनको, कि कैटेगरी है सैटेलाइट कितनी। एक वेदर प्रिडिक्शन वाला, एक कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल वाला, एक ब्रॉडकास्ट मतलब टीवी वाला, एक नेविगेशन मतलब जीपीएस वाला, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताकि नेचुरल रिसोर्सेस और उनका सर्वेइंग वगैरह आसान हो सके, और भी बहुत सारी चीजें। तो इनमें आप देखोगे वेदर वेदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट आर रिलेटेड टू द जीएसएलवी। जीएस इंडियन नेशनल सैटेलाइट वो ठीक है, जीसैट जियो सिंक्रोनस भी ठीक है, बट लॉन्चर कौन है? जीएसएल। क्यों? क्योंकि वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जा रहा है। आप ये तीनों उसी कैटेगरी। जैसे नेविगेशन मतलब जीपीएस बेस पे आ जाओगे तो आप देखोगे पोलर लॉन्च व्हीकल से जाता है, और मिलिट्री सैटेलाइट को इन्होंने नहीं बोला है, बट दैट इज अगेन कनेक्टेड टू द पोलर टाइप ऑफ थिंग ओनली। अर्थ ऑब्जर्वेशनल इज अगेन अ पीएसएलवी। तो यहाँ उन्होंने बीच में जो फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट दिए हैं वो आप पढ़ लीजिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो को स्टॉप करके भी आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। ओके।
So now let's go to the next page. अभी हम चलते हैं इस पर्टिकुलर पेज में, और इसमें आपको ये जो वॉच एंड शेयर नाम के लिंक्स दिए हैं वो मैंने कोशिश की बट वो खुले नहीं। शायद मेरे ऑफिस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, तो पता नहीं वो क्या है। बट आप देख लीजिए कोशिश करके, वो कहीं गलत जगह पे चला जाता है, मे बी सम इशू, तो उसको देखेंगे नहीं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम अभी जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर हम अब तक बहुत सारे स्पेस मिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी ले चुके हैं, तो एग्जैक्टली ऑर्बिट्स ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे उसके लॉन्चिंग की या उसके प्रणाली की और उसके एंड यूज की कैटेगराइजेशन निर्धारित करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू दैट। All artificial satellites do not revolve in the similar orbits around the Earth. The functions of the satellite decide the height of satellite orbit from the Earth's surface. मैं पूरा पढ़ लूंगा, आप भी उसको अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि बाद में मैं समझाऊंगा तो सुना होगा तो समझने में आसानी। The nature of orbit, that is circular or elliptical, and whether the orbit shall be parallel to equator or making some angle with it, to put the satellite in its proper orbit at a specific height above the Earth's surface. That satellite is taken to that height using satellite launcher, and the satellite is given some specific velocity known as critical velocity in a tangential direction to orbit, and the satellite then starts going around the Earth, revolving what is here. The formula for the velocity vc can be derived as v. अब ये चित्र अच्छे से देख लो, बट चित्र के पहले पक्का इमेजिन कर लो कि आप टेनिस क्रिकेट खेलते हो या टेनिस खेलते हो या टेबल टेनिस खेलते हो। एक बॉल ले लीजिए, उसको सामने रखिए, उस सामने रखे हुए बॉल में एक पिन घुसा दीजिए। पिन का जो हेड है वो आप है, वही हर चीज है जो अर्थ के सरफेस पे उस डायरेक्शन में खड़ी रहे। मतलब एवरीथिंग व्हेन इट इज इन अ लेवल्ड सरफेस स्टैंडिंग प्रॉपरली, देन द स्टैंडिंग बॉडी का सेंट्रल एक्सिस passes through and towards the center of earth, तभी वो स्टेबल पकड़ के चले। बहुत सारे छोटे बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं रहती कि हम अर्थ के ऊपर खड़े कैसे हैं, या ये जो महासागर है, तालाब है, नदी है, वो एग्जैक्टली अर्थ के ऊपर कैसे है। और अगर सपोज इसी अवस्था में जैसे इधर चित्र में दिखाया, तो वो पानी हो या वो मिट्टी हो या वो पेड़ पौधे हो, छलक क्यों नहीं जाती नीचे? तो ग्रेविटी सेंटर की तरफ होती है, बाहर की तरफ नहीं होती। ये समझने के लिए आपको एक छोटा एक्सपेरिमेंट में दिखाऊंगा जब आप मुझे फिजिकली मिलेंगे। अभी मैंने जो पढ़ा वो समझा देता हूँ। यहाँ सिर्फ इतना बताया गया कि हर सैटेलाइट एक ही डिस्टेंस पे पृथ्वी से समान दूरी पे नहीं घूमता है, समान तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूम सकता है। जरूरी नहीं कि इक्वेटर को पैरेलल घूमे, हो सकता है कि पोल टू पोल भी घूम सकता है। और ये वो एक को क्या काम करना है उसके अनुसार उसको उस तरीके की ऑर्बिट में, उस तरीके के वेलोसिटी में और उस तरीके के हाइट में डाला जाए। अभी छोटे लोगों को थोड़ा मुश्किल है, बट जो 10वीं के आसपास है उनको समझ में आ गया होगा लगभग कि ये मैं क्या बोल। बट आपने देखा होगा नॉर्मली, कभी आपने एक रस्सी ली होगी, रस्सी को एक एंड पे आपने कुछ हेवी रिंग या कूपन या फिर की चेन बांध दिया, और उंगली के ऊपर आप उस रस्सी को हल्की सी आधी 1 फीट दूरी पे उस किचन को बांध के घुमा रहे हैं। अभी आप सोचिए कि अगर आप एक स्पेसिफिक स्पीड पे नहीं घुमाओगे तो वो सर्कल नहीं बनेगा जो वो किचन बनाता है आपके उंगली के अराउंड सुदर्शन चक्र की तरह। फास्ट करोगे, बहुत ज्यादा फास्ट करोगे तो रस्सी टूट जाएगी और किचन भाग जाएगा और किसी को लग भी जाएगा। बहुत स्लो करोगे तो किचन सर्कल बनाएगा नहीं, ऐसे गिरते पड़ते सिर्फ हिलडुलते रहेगा। मतलब certain specific velocity is required to maintain that circular ring, जो हमको वो कंटिन्यूटी ऑफ विजन है उसके कारण दिखती है और होती भी है वहां पे। तो ये रखने के लिए जो मिनिमम ऑप्टिमम स्पीड चाहिए उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। वो इस मामले में सैटेलाइट के रस्सी का काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर भगाने का काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस मामले में रस्सी वाला सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटी है,
और बाहर भाग जाने वाला जो वेलोसिटी है वो इम्पार्ट की गई वेलोसिटी है। तो कैसे इम्पार्ट होगी, कौन धक्का मारेगा इतने ऊपर जाने के बाद, और इतना धक्का मारने के लिए कौन सा सिस्टम यूज होता है, ये सब आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ ये देखेंगे कि ये फार्मूला का कैलकुलेशन कैसे होता है। आप सबको जो सामने चित्र दिखाया है वो फटाफट समझा देता हूँ। ये जो यहाँ पे आर दिखाया है ये रेडियस है पृथ्वी। ये जो आर है ये है बेसिकली एच प्लस आर। तो बड़ा मेरे पास स्क्रीन, मेरा उंगली से गिरा तो लिखा नहीं जा रहा है। तो ये जो है और ये जो एच है, इन दोनों को मिला के ये छोटा आर बन रहा है। तो अगर ये सब ऐसे हो रहा है, लोग जो इस चीज को जानते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, और ग्रेविटी खींचता है और जी इंटू M1 इंटू M2 इंटू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। अभी ये सब चीज मैंने बट आप सब लोगों ने ये चीज, सॉरी, ये सारी चीज आपने अभी पढ़ी है, ऐसा इन्होंने Use the chapter gravitation, a centripetal force is given like this, and the orbital satellite जो सेंटर ऑफ अर्थ से है वो ये है। अभी थोड़ा कुछ चेंज ऑफ टॉपिक। ये जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, ये है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये मीडियम है, और एक रह गया वो नीचे है, वो है HEO मतलब हाई अर्थ ऑर्बिट। ये तीन क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कम से कम वाला है तो भाई उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट, ज्यादा से ज्यादा वाला है तो हाई अर्थ ऑर्बिट, इंटरमीडिएट वाला है तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो ये चीजें आपको, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको ये वर्डिंग का आगे जाके इस्तेमाल करना। तो ये चीजें हम यहाँ देखेंगे। हमने भी जैसे बात किया, ये वाला आप देख रहे होंगे, मैं इसकी बात कर रहा था और मैं इसकी बात कर रहा था। ये है ग्रेविटी, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटी से इक्वेट किया और फाइनली उन्होंने VC इज इक्वल GM बाय RH किया। इसमें G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे D है। फिर M अर्थ का वजन 6 × 10⁻²4। फिर R जो है वो अर्थ का रेडियस है, वो भी फिक्स्ड है। और ये छोटा एच जो है वो हाइट है अर्थ के ऊपर की सैटेलाइट। तो ये चीजों से ये मालूम हो जाता है कि किधर गया, क्रिटिकल वेलोसिटी सैटेलाइट के वजन के ऊपर निर्धारित निर्धारित नहीं होती। सैटेलाइट के वजन का उसके साथ कोई संबंध, हाइट कितनी है अर्थ के सरफेस के ऊपर, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, और डाल दूं इस तरीके से। तो ये ऊपर वाले जो है मतलब कैपिटल एम जो फिक्स है, जी जो फिक्स्ड है, तो नीचे वाला ही अनफिक्स्ड है और उसमें भी स्पेसिफिकली एच। तो एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वी बढ़ेगा तो एच छोटा, सॉरी, वी बढ़ना है तो एच को छोटा होना है, और वी को घटना है तो एच को बड़ा होना है। तो ये चीजें टेंथ के लिए है, तो टेंथ के बच्चों को समझ में आए। अभी हम आगे चलते हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट के बारे में क्या बताएं, उसके भागता नहीं हूँ मैं। अभी हम पढ़ेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ इतना ही हिसाब है कि इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35780 35,780 किलोमीटर, देन इट्स कॉल्ड हाई अर्थ ऑर्बिट। मतलब इसके ऊपर कुछ भी है तो हाई अर्थ ऑर्बिट है। अभी आप बोलोगे इसका क्या कनेक्शन है, वो जब आगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी वी विल टेक अराउंड 24 hours टू कंप्लीट वन अर्थ रिवोल्यूशन। वी नो दैट अर्थ, अर्थ अपने अराउंड एक चक्कर मारने के लिए 24 घंटा लेती है, ये सबको पता है, बड़े छोटे सबको।
ओके, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट पैरेलल टू इक्वेटर, सोचिए ये अभी थोड़ी देर पहले जो हमने दिखाया ये चित्र, सोचिए ये एप्पल जैसी पृथ्वी को बीच में काट देख रहे हैं, जिसको इंजीनियरिंग की भाषा में टॉप व्यू बोला जाता है, वही ये फ्रंट व्यू है। और मैं जिस ऑर्बिट की अभी टेम्परली आपको, वो ये है HEO, बट आप आपके सिंप्लिसिटी के लिए कर सकते हो। ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ वो ये है, ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये है वो। ये ऑर्बिट आप पक्का दिमाग में रखिए, और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ जहां पे हमने हाई अर्थ ऑर्बिट की बात की। क्या बात कर रहे थे हम लोग कि, मैं शुरू कर रहा हूँ पढ़ना। वी नो दैट द अर्थ टेक्स 24 आवर्स, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट पैरेलल टू इक्वेटर। जो मैंने गोला घुमाया था ना लाल वाला बहुत बार, वो इक्वेटर को पैरेलल है। द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन around itself, and that for the satellite to revolve around the earth being the same, satellite will appear to be stationary with respect to earth. आप सोचिए, पिताजी के साथ आप कार में जा रहे हो, रास्ते के ऊपर एक्सप्रेस हाईवे पुणे की तरफ जा रहे हो आप, और आपके पैरेलल में दूसरी एक गाड़ी चल रही है। सोचिए आप बैठे हो स्कॉर्पियो जीप में, बाजू में एक डिजायर गाड़ी चल रही है, और आपकी हाइट कम है तो आपको सिर्फ स्कॉर्पियो दिख रही है। ओके, अभी अगर आपकी गाड़ी का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, और बाजू में जो डिजायर चल रही है उसका भी 80 किलोमीटर पर आवर है, और आपको सिर्फ वो गाड़ी दिख रही है, तो रियली स्पीकिंग यू विल फील दैट एवरीथिंग इज मूविंग गोइंग बैक एक्सेप्ट दैट डिजायर। आपको ऐसा टेम्पररी लगेगा कि वो बाजू वाली गाड़ी जो है वो शांत है, हम भी शांत है, पर सारी दुनिया पीछे जा रही है। तो ये क्यों लग रहा है? क्योंकि बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड। यहाँ यही एनालॉजी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, बाय टेलिंग यू दैट इफ समथिंग इज मूविंग अबव अर्थ सरफेस विद अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स, एंड अर्थ के ऊपर हर पॉइंट का पीरियड 24 आवर्स का है, तो ऑब्वियसली अर्थ के उस बिंदु के ऊपर वो ऊपर वाली चीज परमानेंटली लटकी हुई है इन अ स्टेडी स्टेट, ऐसे लगेगा। अभी ये कहाँ काम आ सकता है? वहां काम आ सकता है जहां पे पनवेल में, या मुंबई में, या महाराष्ट्र में, या इंडिया में एक पर्टिकुलर सैटेलाइट को सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते रहना है, ताकि लोग एक दूसरे के साथ मोबाइल पे बात कर सकें, ताकि लोग उनके टीवी पे बहुत सारे टाइप के प्रोग्राम देख सकें। तो मतलब वहां उस सैटेलाइट को खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि नीचे से टॉवर से गया हुआ सिग्नल उधर जाएगा, और उधर से निकला हुआ सिग्नल टॉवर तक पहुंचेगा। तो सैटेलाइट को उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर खड़ा रहना इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट टू डू दैट फंक्शन। तो ये काम सैटेलाइट करता है, इसलिए उसको बोला जाता है जियो सिंक्रोनस, अर्थ के स्पीड के साथ सिंक्रो किया हुआ ये सैटेलाइट है। तो उसको लॉन्च कौन करता है? GSLV पर। क्या मतलब है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सारा रामायण अगले 3-4 पन्नों में इन्होंने बताया, जो मैंने आपको 2-4 लाइन में बताया। ओके, तो ये जो आपने पढ़ा, सॉरी, नहीं ना, और भी कुछ। Yes. तो ये यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग, और पैसेंजर, ये सब एक्सप्लेनेशन हो गया अपना। तो जियो सिंक्रोनस का भी एक्सप्लेनेशन हो गया। देयरफॉर वी यूज एप्लीकेशन लाइक मेट्रोनॉम। वैसे ही मैंने आपको टेलीफोन और टेलीविजन और रेडियो की बात की। आप सोचिए अभी मुंबई के ऊपर कंटिन्यूअसली हमको देखना है कि जो बादल अरेबियन सी से आ रहे हैं, वो मुंबई में रुकने वाले, पूना तक जाने वाले, कि आगे नगर तक जाने वाले हैं, कि ऊपर और बढ़ के औरंगाबाद तक जाएंगे, कि जलगांव में बारिश गिराएंगे। ये सारी चीजें तभी हो सकेगी जब वो ऊपर का सैटेलाइट कंटिन्यूअस बेसिस नीचे वालों को देखता रहेगा, और विंड मूवमेंट के हिसाब से बादलों की मूवमेंट को जज करता रहेगा। तो ये डाटा के लिए भी इसी तरीके की प्रणाली यूज होगी, जिसको हम बोलेंगे जियो सिंक्रोनस और जीसैट। ओके, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो भी मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ताकि थोड़े बड़े बच्चों का ये काम हो रहा है। तो आप चैट बॉक्स में सब लोग लिखिए वेदर मैं आपको बोर कर रहा हूँ क्या, सबको सब समझ में आ रहा है? यस नो लिखिए, यस नो तो लिखो। वो भी नहीं लिखेंगे बोल रहे हैं, नाराज हो?
अच्छा अच्छा, लिख रहे, ओके ठीक है, यस मतलब कि ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सर, वाह ये स्मार्ट बॉय कौन है ये? अच्छा, द्विजेश राहते। ओके, नाउ मीडियम अर्थ ऑर्बिट, आपने थोड़ी देर पहले देखा कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिस्टेंस 35,000 के आसपास वो है भाई हाई अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट वाला क्या है? हाइट अबोव द अर्थ सरफेस बिटवीन 2000 टू 35,780, इसके दरमियान है तो भाई मीडियम अर्थ ऑर्बिट। लोअर वाले को भी खत्म कर लेते हैं, 100 किलोमीटर से नहीं, 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर। तो भाई कभी भी जिंदगी में कोई भी पूछे अर्थ ऑर्बिट क्या है, आप देखेंगे जब भी हम कोई भी मिशन और उसके सक्सेस की बात करते हैं तो न्यूज एंकर एलईओ एमईओ ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो खुद उनके अंकल के साथ जाके वो ऑर्बिट में डाल के आए हो सैटेलाइट। तो वो सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं जो उनके सामने वाले स्क्रीन पे रहता है। पर अगर वो क्या बोल रहे हैं इसका समझ आपको आएगा तो आपको वो पर्टिकुलर मिशन सक्सेस के पीछे का रहस्य भी पता चलेगा, और आपका ज्ञान होने के कारण आपको वो न्यूज का मजा भी और ज्यादा आएगा। है कि नॉलेज ऑलवेज हेल्प्स यू टू इवन इवन गेट एंटरटेन, तो एंटरटेन होने के लिए भी नॉलेज की जरूरत होती है। तो यहाँ मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे। If the height of the satellite above Earth's surface is between 2000 to 35780, it's called medium Earth orbit. This geostationary satellite orbit above the equator. These are therefore not useful in study of the polar region. For this purpose, elliptical medium Earth orbit passing over the used. These orbits are called polar orbits, and in this orbit, satellite comes to 20,200 above Earth's surface. Global positioning satellites involved in such orbit. यहाँ मैंने बहुत कुछ पढ़ दिया बट आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। पहले हम पीरियड की बात कर रहे थे जो स्टेशनरी जैसा लग रहा था, और हम बात कर रहे थे 24 आवर्स। अभी हम वो बात नहीं कर रहे, बट अभी हम वो भी बात नहीं कर रहे कि कोई सर्कुलर पैरेलल टू द इक्वेटर ऑर्बिट। हम बात कर रहे हैं इसकी, इसकी, इसमें भी लेके जा सकता हूँ, इधर ही लेके जाता हूँ, चलो। हम बात कर, ओहो सॉरी, हम बात कर रहे हैं इसकी, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ ये दिख रहा है ना आपको, ये एमईओ। मतलब अगर मैं इसको मिटा दूं और आपको बोलूं कि सॉरी हाँ, ओ भाई रुक जाओ, हाँ, ये एमईओ है क्या, या फिर मैं इसको भी मिटा देता हूँ और मैं आपको पूछता हूँ क्या ये एमईओ है क्या? तो लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, अभी मैं दो लोगों को टिक कर रहा हूँ, इसको मतलब ये जो अभी बनाया इसको, और ये दोनों एमईओ, बट एक है पैरेलल टू इक्वेटर इन ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट, एंड अदर वन इज इन पोलर रीजन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, तो ये क्या बताने की कोशिश हो रही है, ये फिर से ऊपर का पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाए। या वही बात हो रही, the geostationary satellite orbits above the equator are may not be certain thing। ओके, तो पोलर रीजन के लिए हमको पोल से भी पास होके आना पड़ेगा, एंड फॉर दिस पर्पस इलिप्टिंग तक जाने वाला कोई लॉन्चिंग सिस्टम चाहिए, तो उसको बोलेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी। ओके, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड पोलर ऑर्बिट्स। एंड यहाँ पे अभी सिंक्रोनस होने के साथ कोई फायदा नहीं है अर्थ का, उसको फास्ट फास्ट कंप्लीट करना है। तो इतनी देर जिसका पीरियड 24 घंटा था, वो कभी 20 भी हो सकता है, कभी 18 भी हो सकता है, कभी 2 घंटे का भी हो सकता है। इतने ट्रेमेंडस स्पीड में वो सैटेलाइट चक्कर मारेगा इतनी दूरी वाले ऑर्बिट से। आपने देखा ना थोड़ी देर पहले कि पोलर ऑर्बिट जो है वो लंबे है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका स्पीड भी बढ़ेगा। तो इस टाइप के सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ होगा? इस टाइप के सिस्टम का इस्तेमाल होगा जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो फिर से चलेंगे टेबल की तरफ। यहाँ आपने देखा ही होगा नेविगेशनल सिस्टम में, ये ये सिस्टम में हम यहाँ गए, और अभी मैं इसको ले रहा हूँ,
ये देखिए आप यहाँ पे बात होती है पीएसएल। तो यही वो पीएसएलवी सिस्टम है जो आपके जीपीएस जैसे एप्लीकेशन के लिए काम आ सकता है। तो जो आपने यहाँ पढ़ा। अभी चलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, जिसकी हाइट है 2000 किलोमीटर। ऑब्वियसली कितना भी अच्छा सिस्टम हो, बट जितना करीब से आप फोटो लेंगे उतना फोटो उसमें जो फाइनर एस्पेक्ट्स है इमेज के वो अच्छे से दिखते हैं। मतलब आपके पास बहुत अच्छा डीएसएलआर कैमरा है और आप सपोज एक 100 फीट की दूरी से फोटो ले रहे हो, बट सिंपल मोबाइल वाला एक 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट आप एक 4 फीट की दूरी से फोटो ले रहे हो, तो ऑब्वियसली 4 फीट वाला फोटो बढ़िया आएगा। ये हम महसूस कर पाते हैं क्योंकि करीब होने से फीचर्स या लाइट रिफ्लेक्टेड कलेक्ट करना आसान हो जाता है। ये मैं इतना भाषण क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि मुझे मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए कोई चीज चाहिए, या मुझे वेदर फोरकास्टिंग के लिए कुछ चाहिए, या मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो सिर्फ अर्थ का एटमोस्फेयर क्रॉस करे और मुझे सेलेस्टियल बॉडीज के फोटो दे और ट्रांसमिट करे, काम के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च होंगे या प्रोब्स भेजी जाएंगी, वो सिर्फ इतने दूरी पे ही रखी जाएंगी। और इस कैटेगरी में कौन कौन आता है, या पढ़ेंगे पैराग्राफ। If the height of the satellite orbit above Earth's surface is between 180 to 2000 kilometers, it's called low Earth orbits. The satellite used for scientific experiments, atmospheric studies, revolve in a low Earth orbits. Depending on the height of their orbit, they complete one revolution in around 90 minutes. अब ये 90 मिनट वाले हीरो कितने हैं हमको, हम जिनको जानते हैं? एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, दूसरा है हबल स्पेस टेलीस्कोप, बहुत सारे मिलिट्री सैटेलाइट शायद इस पर्टिकुलर लो अर्थ ऑर्बिट में घूम सकते हैं। अभी इनको भी तो घूमना है, बट एक जगह पे रुके थोड़ी रहना। रुके भी रहना हो सकता है, बट हर बार थोड़ी एक ही जगह मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक होता है, 10 जगह हो सकता है, तो उसका लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। और वो सब चीज करने के लिए इनको भी शायद पोलर ऑर्बिट में डाला जा सकता है। ऐसे नहीं कि बाकी जगह पे नहीं डाला जा सकता, बट नॉर्मली लॉन्चिंग प्रणाली जो है वो पीएसएलवी होगी। तो ये जो आपने पढ़ा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आपने पढ़ी कि कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड इज इन 90 मिनट्स। तकरीबन हबल स्पेस टेलीस्कोप या आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 90, 91, 92 मिनट्स के पीरियड में घूमते हैं। और इसलिए कभी कभी जब विजिबिलिटी अच्छी होती है तो आपको आईएसएस दिखता भी है आसमान में, और तकरीबन वो एक 7 से 8 मिनट उसकी विजिबिलिटी अपने विजिबल स्काई में रहती है। उसके बाद वो एक चक्कर मार के फिर से अवेलेबल हो जाता है तकरीबन एक 90 मिनट के बाद। 90 में से 7 घटा हो गए तो 7 8, तो तकरीबन 80 मिनट्स के बाद। ओके, उतना पीरियड तक इवनिंग की लाइट रहती नहीं है, वी लाइट, नहीं तो वो फिर से दिखता है। तो ये चीज आपको बतानी थी। अभी आज हमको ये हाई ऑर्बिट भी हो गया, लो ऑर्बिट भी हो गया, कुछ नीचे है। ये फोटो तो हम देख चुके हैं, सिर्फ यहाँ हमको ये चीज पढ़नी है, फिर आज रुक जाएंगे। Do you know that group of students from COEP, College of Engineering, Pune, made a small satellite and sent it to the space through ISRO in 2016? The name was Swayam, and weight was 1 kg, and it is orbiting Earth at a height of 515 kilometers. The main objective of the satellite was to provide point-to-point messaging service using the special method. जो हम बात करते हैं 2G, 3G, 4G, 5G की, तो इस सारी चीजों में बहुत बहुत टेक्नोलॉजी और अलग अलग टेक्नोलॉजी और अलग अलग आईटी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स का इस्तेमाल होता है। ऐसे किसी इनोवेटिव प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर माध्यम से जब स्पेस प्रोब छोड़ा गया तो उसमें ये 1 किलो की एक सिस्टम भेजी गई, और उसमें ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो डाला गया। तो इस तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे भी अच्छे अच्छे काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप भी भविष्य में स्टूडेंट के एज में ही देश के कहीं ना कहीं अच्छे प्रोजेक्ट में काम आ सकते हो। जैसे बीच में एचएएल ने मेरे ख्याल से ड्रोन का प्रोजेक्ट निकाला था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वजन उठाने वाला ड्रोन का डिजाइन मांगा गया है। You can get involved into all such things by reading and doing something, do it yourself टाइप के किट जनरेट करने हैं, खुद को प्रैक्टिकली साउंड बनाना है, और फिर हम आगे बढ़े। फिर यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, पर आज हमारे पास समय नहीं है,
तो ये प्रॉब्लम हम अगली बार देखेंगे। इसमें वो इसके क्रिटिकल वेलोसिटी वाला सम है। देन वी आर लेफ्ट विद वन स्लाइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। तो मतलब वी आर लेफ्ट विद एटलीस्ट वन पीरियड। ओके, कम से कम एक पीरियड का तो मटेरियल है जो हम अगली क्लास में लेंगे। तो टिल देन, गुड नाइट। आपके कुछ डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं हर बार आपको बोलता तो हूँ, बट नॉर्मली आप लोग सवाल पूछते नहीं है। तो अभी मैं आपको फिर से एक खुली छूट दे रहा हूँ कि आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। तो मैं चैट बॉक्स में चला जाता हूँ। अर्निंग सर तक पहुंच गए। कोई सवाल तो है नहीं चैट बॉक्स में। सो इफ देर इज नो क्वेश्चन देन यू कैन लीव। नो सर, नो डाउट। ओके। सो जिनको डाउट नहीं है वो लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट। You can leave the class. Thank you so much. Thank you. Thank you. You can leave, please. Please. Okay. So कौन बचा है?